अच्छा, अच्छा। तो स्क्रीन विजिबल है? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग लगा दिया है, दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग। लास्ट टाइम स्केचिंग में आपने ड्राइंग वाले टूल किए थे। मॉडलिंग में अगर हमने स्केचिंग करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके लुक एट करने के बाद हम मॉडलिंग कर सकते हैं। स्केचिंग, हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग इज रनिंग। ओके, देन मॉडिफाई वाले वो जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है। डायमेंशन वाले ऑप्शन ये हैं अगर आपको डायमेंशन यूज़ करनी है। नाउ फर्दर ऑन कंस्ट्रेंट्स वगैरह लगाने हैं तो कंस्ट्रेंट्स के ऑप्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू ड्रा समथिंग like a line. I want to make it horizontal. So click on constraint, select horizontal constraint. ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद वो एच मीन्स हॉरिजेंटल हो जाता है। फिर एक आपने ड्रॉ में एक टूल लिया विच इज़ लाइन इज टेपर लाइन। क्लिक ऑन कंस्ट्रेंट, क्लिक ऑन वर्टिकल कंस्ट्रेंट, वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल हो जाता है। फिर इफ यू वांट टू मेक टू लाइन परपेंडिकुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट ड्राइंग टूल्स। These two lines are intersecting each other. We click on constraints, select perpendicular. I want to make these two lines at 90 degree. Click on this line, then second line, वो automatically 90 degree पे हो जाएगा. But furthermore, I want to make it this line horizontal, तो उसके accordingly सारी जो object है move कर जाएगा. I want to make tangent a line with a circle. First of all, click on circle, make a line, then go to constraint, make a tangent दिस लाइन विथ दिस सर्कल, वो ऑटोमेटिकली उसे टेंजेंट हो जाएगा. कोइंसिडेंट की कंडीशंस, फॉर दैट आई वांट टू make this end point of this line to the midpoint of this line, make coincident. Click on constraint, click on coincident, select the end point of first line to the midpoint or another point of this line, automatically coincident की condition में आ जाएगा. midpoint, click on this to midpoint, ऑटोमेटिकली वो मिड पॉइंट पे आ जाएगा. सिमेट्री, इन द केस ऑफ सिमेट्री I have to create use start over option again, fresh. Click on start on over, yes.
Here I am going to use the xy plane to look at perpendicular direction. Then go to sketching. To use the constraint symmetry, I have to use first create one circle, make another circle, go to constraint and select symmetry option. In the symmetry option, select first circle, then second circle, then symmetric line. Very symmetric, click on symmetry, select first line, then select first circle, then second circle. They will become symmetric. Parallel, for that I have to create one line. To make these parallel, click on constraint, parallel this line to this line, automatically parallel हो जाएगा. Concentric means we must have two circle which have a common center. So this is one circle, this is second circle. To make a common circle, common center of the circle, first I have to change the radius. Then go to constraint concentric. Select this circle to this circle, automatically उनके बीच का एक center आ जाएगा. Equal radius, I want to make equal radius this to this या this to this. ऑटोमेटिकली दोनों के बीच का रेडियस इक्वल हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा. इक्वल लेंथ, क्लिक ऑन दिस लाइन एंड दिस लाइन. वो जो पहला लाइन सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग दूसरा लाइन इक्वल लेंथ में आ जाएगा. इक्वल डिस्टेंस, देन क्लिक ऑन डायमेंशन, क्लिक हेयर एंड हेयर. उनके बीच का जो डिस्टेंस है, नॉट दिस वन, क्लिक ऑन जनरल, what is this? ये ऑटोमेटिक एस्केप हो गया क्या? Equal distance, click on constraint, click on equal distance, select first point of line by pressing escape. Escape प्रेस करने से कई बार बंद हो जाता है. Select first point of or line or first pair of equal distance constraint. First of all, create one line. Click on equal distance. Automatically it shows the equal distance. Modeling में first of all create one sketch. I'm creating newly sketch again. Select here, look at, go to file. 1 second. First of all, I have to create one rectangle.
First of all, click on modify option. Go to modeling and change the unit to millimeter. And check the dimensions of this object. One is 4147, another is, I'm just pressing it, 40 mm and 50 mm. First of all, create sketch. Then go to dimension. अब यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को 75 प्रेस किया और इसको 40 किया, ठीक है। फिर हम इसमें 3D में चले गए, इस डॉट पे क्लिक करके ISO पे, देन चेंज द यूनिट टू millimeter, then add option extrude. For that go to plane slate sketch. अभी ये येलो कलर में आ रहा होगा। For that click on extrude. एक्सट्रूड में इसकी वैल्यू डाल दी है आपने 50 mm। एक्सट्रूड ये कर गया। एक्सट्रूड करने के बाद इसमें ऐड मटेरियल कंडीशन है, यहाँ पे एक ऐड फ्रोजन का है। ऐड फ्रोजन पे क्लिक कर दो, रिजनरेट कर दो तो फ्रोजन हो जाएगा। लाइक दिस। ऐड फ्रोजन की जगह अगर मैं ऐड मटेरियल कर दूंगा तो इस तरह से शो करेगा, वो जनरेट करेगा। उसके बाद ऐड मटेरियल के बाद इसमें क्या ऑप्शन है, ऐड फ्रोजन का। ये दो ऑप्शन है। यहाँ से यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन, क्लिक ऑन रिवर्स जनरेट, वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा उसके। क्लिक ऑन बोथ सिमेट्रिक, तो बोथ साइड उसके हाथ
सिमेट्रिक करेगा वो जनरेट। 50 mm इधर आ जाएगा, 50 mm उधर आ जाएगा। 25 मैंने एंटर किया, फिर अगेन जनरेट। थिन सरफेस करना है, यस कर दो थिन, तो थिन हो जाएगा। सिमेट्रिक को आपने ए सिमेट्रिक किया, बहुत ए सिमेट्रिक कर रहे हो, क्लिक ऑन जनरेट। ए सिमेट्रिक कंडीशन आ जाएगी, इसमें एक तरफ 25 mm है, एक तरफ 30 mm है। मैं वैल्यू चेंज करके बता देता हूँ। 15 mm इधर है, 30 mm उधर है। मटेरियल कंडीशन नॉर्मल कर देता हूँ पहले से। यहाँ पर आप अगर सर्कल ऐड करोगे, इसमें स्केचिंग में जाके सर्कल ऐड किया तो क्लिक ऑन सर्कल। अभी ये इस फेस पे सिलेक्ट होगा, बट आई डोंट वांट दैट सर्कल टू बी ऑन दैट फेस, सो फॉर दैट आई हैव टू क्लिक एस्केप। अगर एस्केप दबाऊंगा तो कमांड बंद हो जाएगी, वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। सो दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू प्रेस एस्केप टू। मॉडलिंग में जाने के बाद जनरेट कीजिएगा, इस तरफ जनरेट हो जाएगा। नाउ आई हैव टू क्रिएट वन प्लेन। By clicking on plane tool. This is a display plane option. This is a display model option. This is display point option. And this will create in parallel. ISO will move that again. अगर मुझे इसको प्लेन को सामने लाना है, यहाँ पे इसके जस्ट गो टू क्रिएट वन प्लेन, गो टू क्रिएट न्यू प्लेन। जो ये नया प्लेन आया है, इस प्लेन को आप वैल्यूज को चेंज करो, इसकी न्यू प्लेन जो क्रिएट किया है, इसके ऊपर ही आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको अभी डिलीट ही कर देता हूँ। देन अगेन आई हैव टू क्लिक ऑन वन प्लेन, न्यू प्लेन। I want to move that plane along Z axis. Click on Z axis. ये रहा, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, ऑफसेट Z एक्सिस। इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 30 mm, तो इधर आ जाएगा ये। बट इस तरह नहीं मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा चला गया। मैं इसको 30 की जगह 15 दे देता हूँ, जो उसके नेक्स्ट फेज पे आ जाएगा। देन जनरेट। तो प्लेन जो है पीछे था, आगे आ गया, यानी कि स्केच से हम मूव कर गए। इस केस में मैं यहाँ पे एक स्केच अगेन क्रिएट करूँगा। क्लिक ऑन सर्कल, इसके फेस पे यहाँ पे बनाया मैंने। आई जस्ट क्रिएटेड वन सर्कल, गो टू मॉडलिंग, और न्यू प्लेन पे स्केच आया होगा, दिस वन, दिस इज न्यू स्केच, एंड क्लिक ऑन एक्सट्रूड टूल। आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट इसके आगे फ्रंट में बन गया है। मुझे इसकी डायरेक्शन रिवर्स में करना है,
For to reverse this direction, reverse the direction of this object, then click on this again, extrude to, और इसमें जो ऑप्शन आ रहा है नॉर्मल का, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स के बाद जनरेट कीजिएगा और रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा उसके ऊपर 15 mm। इसके बाद ये रिवर्स वाला ऑप्शन आ गया। इसके बाद मटेरियल के पास ऑप्शन बढ़ गए हैं। पहले ऐड फ्रोजन और ऐड मटेरियल वाला ऑप्शन था, अब इसमें कट मटेरियल वाला ऑप्शन आ गया है। कट मटेरियल वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करके बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। रीजनरेट कीजिएगा तो कट में कट होके दिखाएगा ऐसा। कट के बाद ऑप्शन आता है इम्प्रिंट फेसिस का। मैं इसको जनरेट करता हूँ, इम्प्रिंट फेसिस वाला ऑप्शन आ जाएगा बोथ साइड से। यानी कि मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल से फ़िल्टर से फेस सिलेक्शन फ़िल्टर लेता हूँ, तो इस फेस पे सिलेक्ट करके बताएगा ये। अब ये इस फेस पे बता रहा है, इस फेस पे बता रहा है। तो इसमें आप इंडिविजुअली डिफरेंट फेस बना सकते हैं जो इस फेस को डिवाइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्लाइस का। इम्प्रिंट फेसेस की बजाय मैं स्लाइस मेटल कर देता हूँ, देन जनरेट करता हूँ, तो क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सॉलिड दिस वन है और सॉलिड दिस वन है। इस पे क्लिक करके आप इसको सप्रेस बॉडी कर सकते हो, दूसरा बॉडी सप्रेस हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके इसको भी सप्रेस कर सकते हो और इसको अनसप्रेस कर सकते हो, तो वैसा शो करेगा। फिर वापस क्लिक करेंगे, अनसप्रेस बॉडी इधर आएगा। तो दो अलग अलग बॉडी आपके सामने आ जाएंगी। टू पार्ट टू बॉडी। फिर यहाँ पे क्लिक करके हम हाइड बॉडी, अनहाइड शो बॉडी, हाइड बॉडी, शो बॉडी, ये वाले ऑपरेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपने देखे यहाँ पे किस तरह से एक्सट्रूड वाले फीचर्स यूज़ होते हैं इन एनसिस डिज़ाइन मॉडलर। अब मैं रिवॉल्व वाला ऑप्शन बताता हूँ, दिस वन, दिस इज योर रिवॉल्व ऑप्शन। एक्सट्रूड हम कर चुके हैं। I'm just creating one circle here. Click on modeling. यहाँ से हम आ गए मॉडलिंग में। रिवॉल्व स्केचिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, देन गो टू सिलेक्ट रिवॉल्व ऑप्शन।
रिवॉल्व में एक्सिस का रिक्वायरमेंट मांग रहा है यहाँ पे, जस्ट क्लिक ऑन दिस एक्सिस तो ऑटोमेटिकली वो देन अप्लाई ऑन दिस, देन क्लिक ऑन एक्सिस एंड अप्लाई। ये जैसे रेड कलर का एक एक्सिस आएगा, दिस विल शो यू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। देन अप्लाई करने से ये एक सर्कल आएगा और ये वाला एक सर्कल बड़ा आएगा जो इसकी रिवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। देन क्लिक ऑन जनरेट तो ऐसा रिवोल्यूशन ऑप्शन आएगा। ये हो गया। अब ये आपने देखा मेटल कंडीशन यहाँ पे, क्लिक ऑन फाइल हो गया, न्यू फाइल ले लिया मैंने, क्लिक ऑन एक्स वाई प्लेन, लुक एट, यहाँ पे मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ, क्लिक ऑन रेक्टेंगल, यूज द डायमेंशन टूल, एटी mm, 60 mm, मॉडलिंग, फिर स्केचिंग प्लेन पे क्लिक करके एक्सट्रूड लीजिएगा, mm में यूनिट है, ठीक है, ओके, जनरेट कीजिएगा, वो जनरेट हो जाएगा। Then again create new plane, transform to z axis, थर्टी mm, देन जनरेट। यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट करूँगा, रिवोल्यूशन एक्सिस, सर्कल को सिलेक्ट कीजिएगा, न्यू प्लेन जो क्रिएट किया है उस पर सर्कल है ही है, क्लिक ऑन रिवॉल्व, रिवोल्यूशन एक्सिस मैंने ये ले लिया। जब रेड कलर का बड़ा एरो आ जाएगा तब मैं इसको मानूंगा कि ये आ जाएगा, रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो क्लिक ऑन, ये बड़ा एक्सिस रेड कलर का आ गया है, एरो शो कर रहा है, ये एक्सिस के बारे में है। देन क्लिक ऑन अप्लाई, हो चुका है ऑलरेडी। देन क्लिक ऑन जनरेट, रिवॉल्व फेल हो गया है, मे भी कुछ उसमें रह गया, एडिट डेफिनेशन कीजिएगा दोबारा, एजिस भी है हमारे पास, ये वाला एक्सिस हमने सेलेक्ट नहीं किया था। देन जनरेट, ये अब अप्लाई हो गया। इस कंडीशन में भी हम एक मेटेरियल से पार्ट से दूसरे पार्ट को हम ऐड मेटल ऑप्शन, ऐड फ्रोजन ऑप्शन, ये फ्रोजन ऑप्शन है, ऐड मटेरियल ऑप्शन, ये मटेरियल ऑप्शन है, कट मटेरियल ऑप्शन, क्लिक ऑन जनरेट, तो इसमें से कट करके शो करेगा, और इम्प्रिंट फेसेस वाला ऑप्शन, द क्लिक ऑन जनरेट टू इम्प्रिंट द फेसेस, ये डिफरेंट फेस हो जाएंगे, गो टू सिलेक्ट सिलेक्शन फिल्टर, यहाँ पे शो करेगा ये अलग अलग हैं।
Imprint phases give us slice material. Click on generate. Two different solid materials will be created. Two parts, two body. One is solid, this one. Another solid is this one. तो materials को अलग अलग करके स्लाइस कर देगा. यहाँ पर मैं इस सॉलिड बॉडी को सप्रेस कर दूंगा तो ये स्लाइस्ड मटेरियल शो करेगा यहाँ पे. इसको अगर मैं इन्वर्ट स्प्रेस बॉडी सेट कर दूंगा तो ये ऐसे शो करेगा उल्टा करने के बाद. अनसप्रेस इसको कर दिया. क्लिक ऑन सप्रेस बॉडी, क्लिक ऑन सप्रेस बॉडी, सारे ही सप्रेस हो जाएंगे. सो इसके आपके ऊपर है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है. सो यहाँ से अनसप्रेस बॉडी वापस कर देंगे, दोनों शो करेंगे. So this is the condition of revolution. Then again I am going to start our new phase. Click on XY plane, right click, look at. Next option is extrude, revolve, sweep, skin loft option is there. In sweep condition, we have to create a sketch and one circular profile. One sketch and one circular profile. First of all, I have to create one sketch in XY plane. Just clicking on circle. And add a dimension to this, which is of 20 mm. So in XY plane, I have created one closed cross section. But in another plane, I have to create one path for to sweep. And for that, go to modeling. Click on ZX plane, YZ. And this is our XY plane. I want XZ plane, X or Z. This one is our XZ plane. Click on this. XZ plane is created. So I have to create one sketch on XZ plane. Then go to sketching. Select polyline. Draw from the center line. Horizontal, vertical, and this one. Open and ही रखिएगा इसको. And use the dimension tool. H1 is, I am just putting it 45. H3 को मैं यहाँ पे 60 पुट कर रहा हूँ और V2 को मैं पुट कर रहा हूँ 50. Adding some radius. Modify में fillet का ऑप्शन है. I am putting a fillet radius of 10 mm. ठीक है. I created one sketch. And go to modeling, XY plane. I'm just changing the radius 20 mm, and in XY plane I just change the radius to of fillet radius, which is very less. Click on again fillet, modify fillet. I'm putting a radius of 30 mm.
because pipe diameter is always less than the band diameter. losses losses को कम करने के लिए हम we use this 30 is large, so I'm not changing, just checking the it is doing or not. Then go to click on generate. So I have one plane or one path. Just go to select sweep. What is required? Let's check it. Sweep creation, select sweep profile object. It required one sweep profile object. So click on sweep profile, apply. Then for path, go to select path, apply. Then generate. So a sweep with a I've just already told you about the losses because pipe diameter is very much large than the band diameter. So I have to change the pipe diameter. For to change the pipe diameter, go to sketch. I have to change the diameter to 10 mm and then generate. So it will fine tunely create it. Now it's a good. Next condition for to make this solid pipe into a hollow pipe, what we do for that, go to select sweep. स्वीप हमने सेलेक्ट कर दिया है एंड देन थिन फीचर ऑप्शन को यस कीजिएगा एंड देन अप्लाई. ये 1 mm पाइप का एक 1 mm थिकनेस के पाइप का एक वीडियो क्रिएट वो सॉरी which have two bands and it's a pipe naturally, it's a good pipe. So this type this thing, then you want to go add material frozen material, वो आप कर सकते हो उसमें, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो बाकी फीचर्स में. Add material, generate. Want to add some twist options? For that, I have to change my sketch path. Then go to sketch, look at that sketch. I'm going to change the circle to rectangle. So for that, I have to delete the sketch. Cannot delete feature, other feature depend on it. So it's not deleting it. So I have to create one new, start over new fresh feature. Click on XY plane, look at. I'm just straightly create one sketch. I've clicked polygon, number of side I have to set to 5 just to make the drill type of shape. This is my XY axis, generate, then go to isometric and here I have to decide कि इसको किस डायरेक्शन में स्ट्रेट वे लेके जाना है. So XZ is my best direction. This way I can go to XZ, ZX, then go to select ZX and click on look at. Again, I have to go to sketching, select on normal line, go to modeling just to check where is my sketch. Okay.
XY is my plane for perpendicular sketch. Use the dimension tool to check the dimension कितना है इसका, which is 200. Then modeling. So both sketch are created. Go to select generate. We have created two sketch. Sketch 1 and sketch 2. Both are created. Then go to select sweep. In sweep, you must need profile. The click on sketch 1. We must need path. Then select sketch 2. Sorry. In case of profile, just select apply. And in case of path, first select path, uh, profile, apply, and then in the case of path, select this sketch and apply. And then both are in light blue cyan color. Then click on generate. It is created now. Here I am going to explain you what is the twist option. Click on twist. We have two options, pitch and turns. Go to turns, change turns, not turns. I have to click on pitch 10 mm. So इनमें से कोई भी आप ऑप्शन लेके कर सकते हो. I'm just putting it 50 mm. Click on generate. It will automatically create turns. Click on generate. अगर मैं इसमें पिच कम कर देता हूँ तो उतना ही शार्प ये बनता है. Then click on increasing the pitch value. So उसमें टर्न्स उतना ही कम आ जाते हैं. So I have to go to by using the turns option. Here is two option for turns. Click on generate. Two turns are there. I'm just clicking on 1.5 turns. Click on generate. 1.2 turns. Click on generate. Or